success. Sir, welcome, sir, on this platform. Dr. Garg, he is a consultant surgeon, a writer, editor, environmentalist, and a corona warrior. He has done his MBBS and MS in general surgery, FIAGES, FMASI, DMAS, EITS France, minimal invasive endoscopic and GI surgery. He is a fellow ASI colorectal, burns cancer and laser surgery specialist. He is also ex-registrar of AIMS Escort New Delhi and Bombay Hospital, and also president of Junior Doctor Association, Gandhi Medical College. He was invited and honored at the National Burns Center, Mumbai, AIMS New Delhi, International Burns and Wound Congresses at Turkey, Zurich, Birmingham, UK, Bangkok, AIMS Bhopal, and many prestigious institutes. He is also a recipient of International Sambhavna Samman 2016 New Delhi. He is founder of Mangalam Healthcare Foundation and founding editor member of Mangalam Swasthya Patrika, world's first Hindi health magazine for modern medicine since 2002. Welcome, sir, on this platform. Really appreciate. It was a long, CV, and really appreciate karte hai, sir. Sir, if you can unmute yourself and if you can interact, that would be great. Is it possible, sir? क्योंकि हम जानते हैं आप already अपने hospital में हैं, duty hours के बीच में हैं, तो just wanted to know, sir, if you can. No issue. It's nice to talk to our young budding fellows and to motivate them, to enlighten them on any issues. Let us see how they perform in their further life. Okay, can you hear me? Sure, sir, sure. Absolutely, I can hear you well, sir. So मैं initially कुछ question उनके students के behalf से आपको पूछूंगा, and then students के specific questions we will pick up, sir. So let us start this journey, sir. First, and a very basic question, sir. What was your motivation to choose and become a MBBS physician? Why did you decide to become, join this MBBS and medicine career, sir? All right. So if we go back to 1980s time, when there was only two specialties available, either you go to engineering stream or go to medical stream. That was the only two things available to the, I can say, the toppers of the school or college or whatever you say. So fortunately, we have both the streams available, the engineering also, because of the 100% marks in higher mathematics, and in biology section also. We choose to medical stream because my family wanted me to be a doctor and I wanted to do something for mankind. So I choose to my specialty as medical science, and I'm happy that I could get the surgical branch, which was my dream. Right, sir. So that was in fact my next question, sir. How did your journey from MBBS and why specifically PG के लिए आपने जनरल सर्जरी चूज किया, and कभी डिसाइड किया कि yes मुझे जनरल सर्जरी ही करना है, sir? See, general surgery was with me from the day of my MBBS entrance. Why I say so? Because I have seen lots of cases during the time of MIC gas leak. If you remember, there's a huge mishap has happened in my city, Bhopal, where there was a huge MIC gas leak, and hundreds and hundreds of people were died or on roads, and they were needing the treatment on the very dire time, on a very peculiar issue. So with growing time of MBBS, we came to know about the sudden and quick response team member, where we can do immediate work to relieve, to revive, and to get people cured of their diseases. The surgery is one branch which gives you immediate results. If you are active enough, if you are alert enough, if you are intentionally good in your working, then you can probably provide immediate relief to your patients. That is good to know. मतलब tragedy था, but that in that crisis also you did see an opportunity of learning and serving mankind, जैसे आपने पहले ही कहा, तो that is good to know, sir. Yeah, exactly. Sir, correct. Sir, as a general surgeon, what are your daily routine, roles and responsibility? Emergencies कितने रहते हैं और scheduled surgery कैसे रहता है? मतलब how do you balance
एंड मतलब कैसा आपका लाइफ कैसा रहता है, मीन हाउ हेक्टिक इट इज? See, as a surgeon, I can say there is no life. The life you have to practically steal from your working hours. So you have to take those timings out if you want to give it to your family or your friends or to your system. Because as a surgeon, I can say we are on the time, the 24 hours we are on our toes. When we can get any emergency, we don't know. When there is a need in any hospital or in the city or any tragedy or any accident or anything, we don't know. So till my MBBS and MS surgery time, it was 24 hours in hospital. I barely used to go to home because I was working all around the clock in my department of surgery and doing a lot of surgical work over there. And it was fortunate enough. I was fortunate enough to do because everybody was happy with my work during my PG time. Right. अरे करेक्ट सर. नाउ कैन यू शेयर सम मेमोरेबल पेशेंट केस जो आपने मैनेज किए रहेंगे? कोई ऐसा चैलेंजिंग केस जो आपको अभी भी याद रहता है, कि सक्सेस मिला था तब? See, there are lots and lots of cases. I should start from my MS surgery day one time when I was a learning PG student, and I was just blank in I can say surgical arena. So at that time when it was my day one, first day of my duty as a house surgeon, you can call. I was sitting in the emergency ward, and the house surgeon, the junior most person, is the main person who has to take all the front line issues. So there was a boy, I still remember. He came to the emergency ward. He was strangulated by his younger brother. Unfortunately, though both small children were playing at home, nobody is home, and the younger children just उस छोटा भाई अपने बड़े भाई की पीठ पर बैठकर उसको घोड़ा बनाकर उसके गले में रस्सी डाल के खेल रहा था, एंड सडनली वो बच्चा लुढ़क गया उसके ऊपर से, तो वो टाई बन गया उसके ऊपर और वो बच्चा स्ट्रेंगुलेट हो गया, बड़ा भाई. तो व्हेन दैट ये बड़े भाई को जब हमारे पास हॉस्पिटल में लेके आए इमरजेंसी में सर्जरी में, तो देयर वाज नोबडी अवेलेबल, एंड ही वाज दैट बॉय वाज ऑलमोस्ट गॉन. वी कैन से इट वाज डेड because everybody refused. The senior doctors, all the departments, they all refused to nothing can be done now, it's fixed, dilated pupil and everything is gone, you leave it. But we tried. As junior most, I was there in operation theater with that boy, and my senior most anesthetist lady was there who was helping me throughout 3-4 hours. Everybody has gone saying that it is gone, you leave it. लेकिन हम उसके साथ 3-4 घंटे तक लगे रहे. As junior most house surgeon, I performed the tracheostomy below the ligature mark. उसका जो स्टिमुलेशन का मार्क था, फादर की कंसेंट के साथ हमने उसका नीचे एक ओपनिंग बनाया जिसको ट्रेकेस्टोमी कहते हैं. उस ट्रेकेस्टोमी बनाने के साथ ही उसका जितना ब्लॉकेज था वो सब खुल गया. द चाइल्ड रिवाइव्ड, एंड practically next day we were able to discharge him. It was a memorable case for whole of the department that nobody should leave the hope even if the last minute is visible. So that first day surgery, which created an atmosphere of huge acclimatization or applaud for me, gave me huge work. Practically all 7 days I have to be there on emergency duty. No duty in charge or no unit in charge was ready to leave me, despite that we have 7 or 8 colleagues in house surgery. So this was one case. So likewise I can say there was one more boy when 4 साल के ये 2 बच्चे थे, ट्विंस थे. स्कूल से लौटे, बस से उतरे, माँ सड़क के दूसरी तरफ थी. ये मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ सबको कि कहाँ गलतियां होती हैं लोगों से, कि बच्चे के ऊपर से आप चाय का कप या कुछ गर्म चीज लेके जा रहे हो और वो छूट जाती है, बच्चा जल जाता है. ये कॉमन सी चीज है. बच्चा सड़क के उस तरफ है, माँ सड़क के इस तरफ है, और बस को बिना देखे बच्चा दौड़ जाता है. बच्चा छोटा होता है, ड्राइवर को दिखता नहीं, ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है. तो ऐसा ही एक बच्चा हमारे पास तब लाया गया जब उसको 2 हॉस्पिटल डेट डिक्लेयर कर चुके थे. बच्चे ने दौड़ लगाई, बस का पहिया बच्चे के ऊपर से निकल गया. दे वर ट्विंस. तो 2 big hospital said no, but my subordinate was with them, so they called me on. उस समय तो टेलीफोन लाइन होती थी, मोबाइल होते नहीं थे. So they called me कि sir, can you do something? So I said when two hospitals has refused, तो तुम क्यों उसको लेके यहाँ दौड़ना चाहते हो, जब डेड है तो क्या कर पाएंगे? बोले नहीं सर, हम चाहते हैं एक बार आप देखें.
तो हमने उसको ये कहा कि आप सीधे ऑपरेशन थिएटर लेके पहुंचना, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, वी विल सी वॉट एवर वी हैव टू सी इन ऑपरेशन थिएटर इटसेल्फ. Me, my anesthetist was ready there. When the child was brought to our hospital in operation theater, you can believe I practically opened the chest of that boy with a blunt incision. The pressure released and his respiration and heart became again alive. उसके बाद हमने उसकी पूरी सर्जरी की, उसका डायफ्राम फट गया था, चेस्ट और एब्डोमेन दोनों कंपार्टमेंट पूरे हमने सेपरेट किए, पूरा रिपेयर किया, वो बच्चा डिस्चार्ज हुआ. वो दोनों ट्विंस आज पता नहीं कहाँ भी होंगे, but that is another memorable case. And similarly, I will like to share one screen when we are talking of the memorable cases. How can I share this screen? I want to show one photograph to my colleagues or my Sawal. I will try to show the Shushruth, our forefather of surgery, and then I will show this case to all my young students and doctors. You can see this is one boy who was left abandoned. It was born without abdominal wall. You can see all the intestinal layers are away. Can you mark it out? I'm moving the marker. Anybody? We can see, sir. We can see, sir. Yeah. So this child was practically abandoned to be died. कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है. And it was a very challenging, very complicated cases. And again, the mother-in-law of this this child was somehow knowing about me. They contacted me कि सर उसको तो अब उन्होंने मना कर दिया है कि उसको ले जाओ, खत्म कर दो. बट हमने उसको कहा कि लेट अस ट्राई. हमने इस बच्चे का पूरा सब रिवाइव किया, पूरा सब उसका बनाया. यू कैन सी आफ्टर 6 months and you can see after 3-4 years. This is what I want to show to my young buddies, colleagues, कि never leave any hope. First of all, for surgery, you have to have a determination in your mind. You have to have a dedication in your mind. And you should have the daring in your hands, in your heart, in your mind, that yes, you want to come to surgery. And when you come to surgery, never leave a hope, especially in children or in young persons who are there to live by God for some more years. You have to give your 100%. Absolutely, sir. तो obviously आपने बताया, but then still आप कैसे बैलेंस करते हो वर्क लाइफ फैमिली, कैसे बैलेंस करते हो सर? See, everybody has to understand what I can explain to my colleagues or my fellows. Your every family member has to adjust with your lifestyle. That is how the balance comes. कितने इंसिडेंट्स मैं आपको सुना सकता हूँ कि शाम को 8 बजे बच्चे, वाइफ, सब लोग तैयार बैठे हैं कि आज खाना खाने बाहर जाना है. And a sudden emergency call comes. You can understand. You have to rush to hospital and everybody there is in the house कि खिचड़ी बनेगी, अब जो बचा है उसी से खा के. तो ये बहुत सा टाइम ऐसा निकलता है. Our only holiday comes when we are out of the town due to certain reasons. Otherwise, there is no holiday. So balance comes from all the side, the friends, the family members, wife, kids, everybody. And I can say I am fortunate enough. Everybody has not only cooperated, everybody has considered, everybody has understood the things, and we have we are doing जितना भी हमसे सर्जिकल काम हो सकता है, जितना भी लोगों का काम हो सकता है. You have read into my biodata also that I am the founder of Mangalam Health Foundation since last 30 years. And you can understand that almost 80% of my work is free charity. We never refuse to anybody. God is there with us, who is giving to every possible support to us despite all hardships of society, or we can call the system, the policing, the society. So it is hard to stay as a surgical expert in our society, in our country. But if you do good work, if you are available to your patients, they understand to you. Absolutely, absolutely. So again एक ही बात आती है कि वो जुनून, वो जज्बा, वो पैशन चाहिए अगर आपको सर्जरी लेना है. Absolutely. सर, डिमांड आपकी जो सर्जिकल प्रोफेशन है, ऑफ कोर्स इंडिया हो या अब्रॉड हो, what do you feel is the demand of surgery as a field, sir? See, demand of surgery is never going to die. What I can say, the number of specialties are rising day by day.
Earlier we have to have only general surgeons. Now we have practically each and every variety of surgical subspecialties with us now, as ENT surgeon or eye surgeon or neurosurgeons or spine surgeons or abdominal surgeons. I myself is a gastrosurgeon, but I'm doing lots of innovative work in skin and soft tissues, in burns, in cancer, in gangrene, and in other skin incurable diseases, which I will show you later in the discussion. So what exactly happens that the number of rising subspecialties, the work is getting most cornered for them. The person is limited to one small subspecialty like neurosurgery. So he is doing just only that part. He is not concerned with other parts. But as a surgeon or as a surgeon, general surgeon, I can say I have to look the patient as a physician first. I have to look for each and everything of their body, because when you are taking a patient to your operation table, and if he is suffering from multiple other diseases, and if you are ignoring them, it may become a disaster for your patient, for your results also. So to get the best result, to give the best service to your patient, you have to look for the other aspects. So the demand is definitely rising, demand is definitely there, but the uh, extensive input, the hard work is limiting our young buddies to come to surgical field. That could be a reason of worry, because perhaps they, इन लोगों को लगता होगा कि हमको बहुत काम सर्जरी में करना पड़ेगा और सर्जरी में वो हमको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, या हम सर्जरी में कैसे करेंगे. कुछ लोगों को खून देखकर डर लगता है, कुछ लोगों को उतनी दिक्कत होती है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, एक्सीडेंट्स में जहाँ मल्टीपल ट्रॉमा होते हैं, बहुत सारी चोट होती है. तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास डेयरिंग है, अगर आप समझते हैं कि आपको करना है, तभी आपको सर्जरी की तरफ बढ़ना चाहिए. और फिर सर्जरी में बहुत सारे स्कोप हैं, आप कितने सारे ब्रांचेस में आगे बढ़ के जा सकते हैं. और अगर आप अटेंटिव हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे. और सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें तुरंत रिजल्ट मिलता है. अगर आपने अच्छा काम किया है तो मरीज आपको तुरंत एक स्माइलिंग फेस के साथ आपको ग्रीट करेगा नेक्स्ट डे ऑफ द सर्जरी. और अगर आप उस चीज को समझते हैं कि पेशेंट के स्माइल से आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है, तो मैं समझता हूँ ये परहैप्स दुनिया का सबसे बढ़िया रिवॉर्ड है. एब्सोल्युटली. तो इंडिया हो या ग्लोबल हो, डिमांड तो डेफिनेटली रहेगा. सर ऑलरेडी आपने स्ट्रेस किया था अबाउट द न्यू सब स्पेशलिटीज, बट उसके अलावा भी सर क्या कौन से फील्ड्स है और क्या रिसर्च हो रहा है जनरल सर्जरी या ओवरऑल सर्जिकल फील्ड्स में सर? देखिए, every patient is a new subject for any doctor, I can say. Whatever is written in the books is very preliminary information. A person comes to us with multiple complications or multiple symptoms or multiple diseases, then we have to look and we have to read between the lines. मैं अपने बच्चों को, अपने जूनियर डॉक्टर्स को, अपने यंग कमिंग डॉक्टर्स को बार बार ये कहना चाहता हूं कि never read the lines, read between the lines. If you read between the lines, you will understand what next could be possible, and what next could be possible is an innovation. If anybody can understand why these two words, read between the lines, and the new thing is innovation. So I will show you later when you are comfortable to see the screen again. I have 28 innovations of surgical work with me. Besides many innovative surgeries, beside many new surgeries, beside स्पेशल सर्जरीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो अगर नहीं अटेम्प्ट की जाती तो शायद वो बच्चे मर जाते या बड़े पेशेंट माइट. So I can just say this is one result of a burn case. Okay, the burn heals with scars and contractures and deformity and disfigurement. So this was my huge concern. Can we give some relief to these type of patients? Can we do something better for this type of patients? And I can tell you, in my country, this is the component silver sulfur diazine. It is banned in complete Europe, but in our Indian subcontinent, this product is being widely used for burn patient, and this is practically disturbing the results. So what should be applied? So I invented my own dressings, and you can see
This is a huge burn over the back of a child, and within a week it is almost healed completely, and in 6 weeks time there is no spark or mark left. So similarly, this is the one case where the burns result we have improvised a lot, and this is the innovative work. You can see another patient with major burns, almost complete body due to bilar explosion, and this is our dressings. And you can see on day 6, day 9 it is almost in the walking stage, and at 6 weeks the scars and marks and everything is gone. We get sometimes these type of cases where the extremely bad face burns, it is ultimately going to result to a big scar. But you can see at 6 weeks we can give almost scarless result. Similarly, like this, you can see how smiley and how happy these people are. So this is something which is for burns, and we get the hand burns in a very problematic condition, but we can revive these fingers completely to a normal level without any scar or mark. So these are some of the innovations. In such total, I have almost 28 innovations for all types of burns, wounds, gangrene, and I have global presentations all over world, which you have already read into my CV. One thing I would like to show to my young colleagues that in gangrene you have no option left but to amputate the foot. And diabetics, we have to amputate this type of foot. There is nothing left in these patients. But you can understand if you are there to revive the foot in 2-3 days time, 4 days time, so that you can give them the life and you can make them happy. Because amputation in itself makes a huge psychological discomfort. We get lots of amputated tips of fingers, and you can see this is the level of amputation. It is just, and the first phalanx has gone. But we can revive and almost regrow the finger with our innovation. This is another innovation. Similarly, in psoriasis, we can make them happy with our another psoriatic innovation. And the most problematic part is the leprosy wounds, जिसका हम लोग कहते हैं कि वो हाथ गलने लगते हैं, जख्म ठीक नहीं होते. माय टीचर जिन्होंने मुझे सर्जरी पढ़ाई थी, जिन्होंने मेरा उन्होंने मुझे 20 साल तक इस पेशेंट का जब वो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने मुझे एक दिन ये चैलेंज के तौर पे भेजा कि आप इसको ठीक करके बताइए डॉक्टर साहब. एंड I was so fortunate and happy that in 10 days time I have given this result to him. He was very happy. Similarly, if we go to much more complicated cases like the cases of skin cancer, which we get in basal cell carcinoma, where the total nose and block excision has to be done. But with our innovation, we can practically heal these patients and completely cure the cancer also of skin origins. This is another skin cancer case where it was left like this, and we have healed the patient like this. And so lot of work can be done in diabetic wounds which never heals too. We can make them happy in very limited time. Even the veterinary section, the burnt animals comes to us, and we can provide them the relief. So this is something which is going on, and if you are happy, so be generous to your patient and be generous to your animal creatures also. For experiment or for other need, they should not be harmed. We can say in our all innovations, we have not harmed any animal. मत सर डेफिनेटली अभी ये क्वेश्चन है कि यंग बच्चे जो आज आपको सुन रहे हैं, इन्हें क्यों सर्जरी पिकअप करना चाहिए? व्हाट इज दैट? आपने ऑलरेडी बताया जो स्माइल पेशेंट का, बट उसके अलावा सर्जरी एज अ फील्ड, व्हाई डू यू थिंक शुड बी पिकअप? देखो, सर्जरी इसलिए पिकअप करना चाहिए, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि अगर आपके अंदर जील है, आपके अंदर एंथुसियाज्म है, आपके अंदर डेयरिंग है, और आप उस इमरजेंसी चैलेंज को ले सकते हो कि पेशेंट आपके पास जस्ट पहुंचा है,
you don't have any investigation with you, you don't have any support with you, can you help him in that dying hour, that is we call the golden hour, the first hour of that patient, in either in roadside accident or in stabbing or in gunshot injury, किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन में आपके पास जब पेशेंट पहुंचता है तो आपके पास कितना कितना पेशेंट है उसके लिए, आपके पास कितना उसके लिए टाइम है, अटेंशन है कि आप उसको इमीडिएट रिलीफ दे सकते हो। अगर आपके पास ये जील या एंथुसियाज्म है तो आपको सर्जरी में कोई आपका हाथ नहीं रोक सकता है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आपको सेल्फलेसली उस पेशेंट के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, आपको बिना ये सोचे एफर्ट करना पड़ेगा कि वो पेशेंट पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, उससे मुझको इनकम होगी कि नहीं होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब पेशेंट को ठीक करके खड़ा करते हो और अगर आपको वो कुछ नहीं भी देके जाता है तो वो स्माइल देके जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनी इज नॉट द थिंग, बट डेफिनेटली सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट सर, कौन से सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, या अगर उस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट रहेगा तो सर्जरी के लिए बढ़िया रहेगा, कि व्हाट डू यू से, कोई सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? एग्जैक्टली। सो टू बिकम ए गुड सर्जन आई कैन से, आप जब फर्स्ट ईयर अपना मेडिकल में एडमिशन लेते हो, जब आप एनाटॉमी डिपार्टमेंट में पहुंचते हो, तो हम लोग देखते हैं कि आधे से ज्यादा लोग तो वहां पर फॉर्मेलिन की स्मेल से ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। बचे हुए आधे में से आधे लोग डेड बॉडी देखकर गिर जाते हैं। हार्डली 10% लोग ऐसे बचते हैं जो उस कैडेवर का, डेड बॉडी का डिटेक्शन करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको उस वर्क में इंटरेस्ट है, अगर आपको उस डिसेक्शन में इंटरेस्ट है, आई कैन से सर्जरी स्टार्ट्स फ्रॉम बार्बर वर्क। आपको शेविंग से शुरू करना होती है। सर्जरी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्विंग वर्क, आपको सिलाई से शुरू करना होती है। आप इन सब चीजों को करके देखिए। आप जब एनाटॉमी में पहुंचते हैं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपने बहुत अच्छा डिसेक्शन किया, नीट एंड क्लीन डिसेक्शन किया, तो आपके अपने मेजरमेंट्स, आपके जितने भी इंजीनियरिंग गैजेट्स हैं वो सब आपके हाथ में होते हैं। आपके प्रैक्टिकली आपके पास कुछ नहीं होता है। आपका मिलीमीटर टू मिलीमीटर आपका स्किन की क्रीज इंपॉर्टेंट होती है। अब वहीं पर आपका डिसेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट यू कैन प्रिजर्व द ब्लड वेसल्स, नर्व्स और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर आप बूचरी करते हैं तो आप सर्जन नहीं बन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है एनाटॉमी में, आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है जिसमें मैं आपसे कहूं कि अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप जल्दबाजी मचा रहे हैं, तो आपको सर्जरी में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, आपको एनाटॉमी से ही समझ में आ जाएगा कि आपको सर्जरी की तरफ जाना, सर्जिकल ब्रांचेस की तरफ जाना है कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से लोग ब्लड नहीं देख पाते, बहुत से लोग स्मेल नहीं सहन कर पाते, बहुत से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर वो मेडिकल ब्रांचेस होती हैं जहां वो मेडिकल ब्रांचेस में अपने आप को शिफ्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाते हैं, आपको इंटरेस्ट बनता चला जाता है और आपको फाइनल ईयर तक आते आते जब आपकी पोस्टिंग सारे डिपार्टमेंट्स में घूमती है, तो हम देखते हैं अधिकतर बच्चे किताबों में घुसे रहते हैं और ज्यादातर लोग मस्ती के मूड में रहते हैं। हमारा सबको सिर्फ एक छोटी सी समझाइश है कि आप हर जगह पर अपना उस टाइम का डेडिकेशन कीजिए, उस स्पेशलिटी में, उस ब्रांच में जहां आपकी पोस्टिंग है। मन लगा के सिर्फ ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या मुझे इसमें मजा आ रहा है। अगर आपको अपने काम में आनंद आने लगे तो फिर वो काम नहीं रह जाता, फिर वो एक स्पेशलिटी बन जाता है, फिर वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक गाने वाले को, एक म्यूजिशियन को, एक वोकलिस्ट को या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को वो इंस्ट्रूमेंट बजाने में मजा आता है, इसलिए वो उसके ऊपर काम करता है, वो उसका एक्सपर्ट बन जाता है। सिमिलरली अगर आपको नाइफ पकड़ने में और नाइफ चलाने में मजा आने लग जाता है और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो आप नाइफ के मास्टर बन जाते हैं। दिस इज व्हाट इज ए सर्जन। एब्सोल्युटली, वो कहते ही है ना कि सर्जरी इज नॉट जस्ट मेडिसिन, बट वो आर्ट भी उतना ही है। तो डेफिनेटली सही बात कहा सर। आपने ऑलरेडी कवर किया है, बट सर व्हाट इज द मैसेज सर, व्हाट इज योर मैसेज फॉर दिस यंग स्टूडेंट जो अभी मेडिकल स्कूल ज्वाइन करेंगे? व्हाट व्हाट मतलब फ्यूचर के लिए उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं सर? मेरा सबसे पहला मैसेज तो ये है कि अगर आपके अंदर एंथुसियाज्म है, जील है, पैशन है, तो ही आप मेडिकल ब्रांच में आने का सोचिए। अगर आपका मकसद इसमें पैसा कमाना है तो मैं बहुत सीधी सी बात कहूंगा कि आप इससे ज्यादा पैसा दूसरे कामों में कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें पैसे के साथ साथ आपको लोगों की से ब्लेसिंग्स भी मिले, आपको एक प्राउड फील भी हो, आपको एक
अपने आप पे गर्व महसूस हो, लोग आपके ऊपर गर्व महसूस करें, क्योंकि क्योंकि आज भी मेडिकल साइंस खास तौर से इंडिया की पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। जितना भी इंडियन डॉक्टर्स का, हम हमारे यहाँ पर जरूर ये कह सकते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या जो व्यापम का इंसिडेंस हुआ उसके बाद से, या जो रिजर्वेशन है उसके बाद से, इंडियन डॉक्टर्स की एक छवि दुनिया में ठीक नहीं है। लेकिन जो भी इंडियन डॉक्टर्स इंडिया से निकल के बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त एटमॉस्फेयर खुलता है, क्योंकि दे आर द मोस्ट कंसिडर्ड हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो आप बिल्कुल सोच के चलिए कि अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है तो आज आप 1-2 करोड़ रुपए खर्च करके मेडिकल साइंस पढ़ के बाहर निकलेंगे। इसके बजाय इस पैसे को बैंक में डाल दीजिए, उसके ब्याज से आप एंजॉय करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी चाहिए, एक अच्छा नाम भी चाहिए, एक अच्छा काम भी चाहिए, और मुझ में वो पैशन है, मुझ में वो एंथुसियाज्म है कि मुझे कुछ करना है, तो ये मेडिकल साइंस आपके लिए बहुत अच्छी साइंस हो सकती Sir, how है। many बताइए। hours will it take to how many hours it is necessary to study after college? कॉलेज के बाद कितने घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा मुझे? कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा पढ़ाई वो कह रहा है, अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो सर। नहीं, देखो, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपके लिए 24 घंटे भी कम है। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि आपने अगर अपने सब्जेक्ट्स को ठीक से पढ़ा है, तो वो ठीक से पढ़ी हुई चीजें आपके सामने, आपके टेबल पर, आपके पेशेंट्स के सामने आपको सफिशिएंट टाइम देती हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज, और आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए पर्याप्त हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आ जाएगा, किसी को नहीं आता। ये हमारी कंटिन्यूस स्टडी है। आज भी हम लोग 6-8 घंटे नेट पर, जर्नल्स में, दूसरी चीजों में, क्योंकि एक मेडिसिन ही ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको अपने आप को लगातार अपडेट रखना पड़ेगा, और लगातार आपको वो चीज सोचना पड़ेगी कि पेशेंट 4 जगह से ट्रीटमेंट लेकर आ गया है और उसकी तकलीफ ठीक नहीं हो रही है, तो यू शुड बी द लास्ट वन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। यू शुड नॉट बी द 5th, 6th, 7th और 8th वन की आपने सिर्फ अपना काम कर दिया, अपनी फीस ले ली और पेशेंट को जाने दिया। It should be your moral responsibility to repay him what he is paying to you. एक कौन सी ऐसी हैबिट मैं डेली डेवलप कर लूं ताकि मैं एक अच्छा सर्जन बन सकूं? व्हाट इज अ गुड हैबिट जो मुझे डेवलप करनी चाहिए? देखो, अगर आप जैसे एमबीबीएस कर रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको जब भी मौका मिले सर्जिकल वार्ड्स में अपने सीनियर्स के पास जाके बैठ जाइए। रात को आप अपने कमरे में मस्ती करने या सोने या टीवी देखने की जगह अगर आप वार्ड में जाकर बैठेंगे तो आप एक कॉलेज लाइफ से ही आप अपने आप को सर्जिकल ब्रांच की तरफ मोटिवेट कर लेंगे। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी वर डूइंग एमबीबीएस। अगर आप उसके बाद सर्जरी की ब्रांच में चले जाते हैं तो आपके पास सर्जरी की ब्रांच में ये नहीं होना चाहिए कि मेरी ड्यूटी तो 12 घंटे की थी, उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। मैं अपने जूनियर्स को ये बताना चाहता हूं कि मेरे एमएस के समय में मैं पूरे 3 साल 2400 घंटे सर्जरी वार्ड के एक छोटे से कमरे में रहा हूं, अवेलेबल 24 आवर्स टू माय ऑल द यूनिट्स। तो आप अपने अपने अंदर से एक चीज डिसाइड कीजिए कि आपको किस चीज को करने से आपका एक स्किल बढ़ता है। देखिए, एक बडिंग सर्जन को क्या चीजों की जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा कि आपका प्रिसीजन, आपका नाइफ का कितना सेंटीमीटर से कितना मिलीमीटर तक का इंसिजन बनना चाहिए, वो आपको इंची टेप लेके नापने से नहीं होगा। वो आपकी फिंगर को पता होना चाहिए कि मैंने कितना किया तो इतना इंसिजन होगा। सेम थिंग जब आप स्टिच करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे बेहतर सिलाई दुनिया का कोई दर्जी नहीं कर सकता। ये 2 चीजों पे आप फोकस करिए, आप बहुत अच्छे सर्जन बन जाएंगे। अभी जो सर्जरी में प्रेशर वगैरह रहता है तो हाउ डू यू रिएक्ट अंडर प्रेशर? वो प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं सर? देखो, प्रेशर को मैनेज करने के लिए मैंने कहा ना कि आपको अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। प्रेशर बहुत आता है, नो डाउट, लेकिन जब आप सर्जरी कर रहे होते हो तो आप सर्जरी की एक टीम का पार्ट होते हो, तो आपके पास वो प्रेशर नहीं होता जो टीम के हेड के पास होता है। यू कैन अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू, और रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम टू योर शोल्डर्स व्हेन यू विल बिकम एन इंडिपेंडेंट सर्जन। तो अपने आप को उसके लिए तैयार करिए। जब आप बहुत बहुत छोटी स्टेज से पार्ट है टीम का, तो आपके पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसी पेशेंट के किस रिजल्ट से क्या होगा, तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। मैं अभी एक रिसेंट किस्सा जो अभी 10 एक दिन से सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, एक यंग बडिंग सर्जन था साउथ का कोई, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसका रिजल्ट गड़बड़ हो गया। तो वो जिस पेशेंट को उसने ऑपरेट किया उस पेशेंट को कोई ऑपरेट नहीं कर रहा था,
उसको मल्टीपल प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, सब कुछ थी। इस लड़के ने रिस्क लेके उसको काम को किया। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट वाज नॉट पॉजिटिव। तो पूरा सोशल मीडिया, पूरा पुलिस, प्रेस, ये सब प्रेशर हम लोगों के समय में सब जगह पर आते हैं। हमने भी कितने कितने केसेस इस बारे में झेले हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि हमको कई बार ऐसा लगता है, जैसे वो जिस बच्चे के ऊपर से बस का पहिया चला गया था, जिस बच्चे को बिल्कुल डेड डिक्लेयर कर दिया गया था 2 हॉस्पिटल के जरिए, हमने तीसरे हॉस्पिटल में उसको इमीडिएटली ओटी में लेकर रिवाइव किया, उसको जिंदा घर भेजा। उस बच्चे का इंश्योरेंस का क्लेम था, तो मुझे उसमें कोर्ट जाना पड़ा एविडेंस देने के लिए। एज ए सर्जन, एज ए कंसल्टिंग सर्जन, आपको जाना पड़ता है आपके व्यूज बताने के लिए। तो वहां पर अपोजिशन का जो वकील था, इंश्योरेंस वाला, वो मुझसे ये बहस कर रहा था कि डॉक्टर साहब इसमें ना तो एक्सरे है, ना सीटी स्कैन है, ना इसमें कोई जांच है, आपने तो उठा के पेट चीर दिया किसी का भी। तो यू कैन प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि हम लोग कितने टेंशन में या कितने स्टफ उसमें होते हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ना वो पुलिस वाला समझेगा, ना प्रेस वाला समझेगा, ना पेरेंट्स बच्चे के रिलेटिव समझेंगे, ना जज समझेगा। और आजकल हमारे देश में सारे लोग जज बने हुए हैं, मीडिया भी जज बना हुआ है, सब कुछ बने हुए हैं। आपको अपने आप को बहुत संभाल के चलना है। आप जो भी काम करें उसको डॉक्यूमेंट करें। आप जो भी कुछ करते हैं, आज की तारीख में आपके पास गैजेट्स अवेलेबल हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, एक एक चीज समझाएं और पूरी हिम्मत के साथ जुटें। हम कई बार इतनी पूरी स्थिति में फंसते हैं कि हमने एक बच्चे को, जिसका कि 11 घंटे सर्जरी करके हमने उसको घर भेजा था। मुझे आज भी याद है कि 2 मई 2005 में मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरे ऊपर फर्जी हरिजन एट्रोसिटी केस लगाया गया, मुझको जेल में ले जाके बंद किया गया। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, आपने मेहनत से अपना पूरा, और हम उस बच्चे को जिंदा घर भेज रहे थे 11 घंटे सर्जरी करने के बाद भी, हमारे चैरिटी मंगलम फाउंडेशन के 0 बिल के साथ। उसके बावजूद भी उन्होंने वो हंगामा किया, क्योंकि उनको लगा कि हम कुछ पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, अस्पताल से। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ हर कोई ठेकेदार बना हुआ है, हर कोई जज बना हुआ है, और आपको इन सबके बीच में अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो मैं अपने सारे यंग बडीज को बहुत ऑनेस्टली ये कहना चाहता हूँ कि अपना काम करिए, लेकिन आज आपको समझदारी और सावधानी रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये समाज सुनना नहीं चाहता है, और इसलिए हमारे यहाँ से पलायन बहुत है। हमारे सारे अच्छे अच्छे लोग बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं। वही बच्चे पूछ रहे सर, इंडिया में करियर अच्छा है कि अब्रॉड में? तो आपने वही देखिए, बताया। सब जगह अच्छा है। इंडिया में तो अच्छे डॉक्टरों की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। हो सकता है आपको पैसा उतना ना मिले जितना आपको बाहर मिल जाता है, लेकिन मैंने कहा कि इंडिया में आज भी आपके लिए सम्मान बहुत है। आपके पेशेंट आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं। हम जरूर ये कहना चाहते हैं, वो यंग सर्जन का मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वो बच्चा प्रेशर झेल नहीं पाया, उसने सुसाइड कर लिया। इट वॉज नॉट। आज उसकी बच्ची, उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसकी वाइफ है और छोटा सा बच्चा है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं उसके साथ। अब आज इन 4 लोगों को कौन देखेगा? आज आप एक सर्जिकल हॉस्पिटल बनाने जाते हैं, इतना पैसा लगता है, उस पैसे की भरपाई कैसे होगी? तो सब चीजों को समझते हुए आपको करना पड़ेगा। मैं इसमें किसी भी बच्चे को डरा नहीं रहा हूँ या हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, बट आपको अपनी अपनी टीम बनाना चाहिए। आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए, जिस सिस्टम में आप लोगों को शामिल करके चलें कि ये ऐसा है, और आपको लगता है कि किसी भी व्यवस्था में कि कोई पेशेंट न्यूसेंस कर सकता है या कहीं दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए पहले से तैयारी करके चलें। ग्रेट ग्रेट सर। मैं एक क्वेश्चन सैफ अली ने बहुत इंटरेस्टिंग पूछा सर। कह रहे हैं कि सर आप 24 घंटे ड्यूटी रहती है, एकदम एक्सेस ड्यूटी रहती है, तो अपनी स्लीप को कैसे मैनेज करते हो? नो, एट टाइम्स वो भी तो चैलेंज होती रहेगी, तो हाउ डू यू बिल्कुल, मैनेज योर स्लीप सर? बिल्कुल। आपको, जैसे मैंने कहा, रीड बिटवीन द लाइंस, तो आपको स्लीप बिटवीन द पेशेंट्स करना होता है। आप जहां होते हो वहीं पर आपको जितनी देर स्लीप मिल जाए करना होती है। आपको 6 से 7 घंटे सोना है, लेकिन वो आपको एज ए सर्जन कभी भी एट ए स्ट्रेच नहीं मिलता है। आपको बीच बीच में टाइम निकाल के सोना होता है। एक एपिसोड में सुनाता हूँ। मेरे जो MS सर्जरी के समय की मेरी सबसे हैवी यूनिट हुआ करती थी, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हमारे प्रोफेसर रांगनेकर साहब की यूनिट हुआ करती थी, वो जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट का लोड होता था उसमें। ये मैं 91 की बात बता रहा हूँ आपको। और यू वुडंट बिलीव कि हमने एट ए स्ट्रेच 15 दिन तक लगातार ओटी चलाई है उस यूनिट में, एक बार नॉन स्टॉप। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा एड्रेनलिन कितना हाई था कि जैसे 15 दिन हमारा लास्ट पेशेंट का सर्जरी खत्म हुआ, I was just dropped down on the floor in the operation theater itself, कि जैसे हुआ कि हाँ सब ठीक हो गया, I was just dropped down. तो
वन कैन अंडरस्टैंड कि जब आपके सामने काम होता है और अगर आपके अंदर से एक प्रेरणा होती है तो आपको सब समय छोटे लगने लगते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज होना चाहिए।